Okay. So now put your hands down. Put your hands down. Okay. Now see over here. आप टाइम का इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टाइम के इशू के लिए आप क्या कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. ओके. सी ओवर हियर. सो डेफिनेटली टाइम का इशू होगा. टाइम का इशू ऐसा नहीं है कि तुरंत चला जाएगा. इट विल रिक्वायर टाइम. ओके. वो कैसे जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ. आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. ओके. ओके, your all settings are new. Now see. Dear students, I think we are facing some technical issues. Give me 1 minute. Okay. So time management in exam. Now see over here. So many times, okay, I think this pad is not working properly with this device. Give me 1 minute. Okay. Dear students, let me change this device because we are facing some issues over here. Give me 1 minute.
Now students can you able to see this screen now? Okay. Okay. Now I think this screen is visible to you and you can hear me. So just give me two response. You can hear me and screen is visible to you, isn't it? Okay. And here also let me adjust this settings. Okay. So I think it will be much clearer to you now. Okay. So let us resume this. So we were discussing about your issues regarding time. Okay. Wait. Now see over here. Let us discuss about time. In you are facing that you are having less time, right, in exam, or you are facing that your speed is low, isn't it? Now, so or you are facing that. So for that, what you can do? See, it requires time. It requires time to improve. Okay. So for that, I'm going to give you one method. वो आपको 21 days से लेकर 63 days तक follow करनी है, right? आपको एक पूरा टेबल बनाना है संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे. Okay. See here. Suppose here assume that this is your calendar. Okay. Now, in this calendar, you can make this type of one calendar at your home. Okay. In behind of your any notebook or any copy. Now, in that calendar, right, you can start like this. Your Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Today we are having 8 June. Okay. So this is Monday. We are having 8 June, 9 June, 10 June, 11 June, 12 June, 13 June. So I'm showing you this calendar for only 1 week, right? Like that you can proceed. Every day, right? You have to spend 30 minutes, right? Or even you can utilize your homework time in this also. 30 minutes for solving problems of maths. Okay. These are your extra problems, right? Or problems that you have already solved, right? Already हम यहाँ पे आपके मॉड्यूल के और सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देते हैं. सो मॉड्यूल के क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो उसके बाद वाले आप मतलब वही क्वेश्चंस को आप रिवीजन के लिए इसमें डाल सकते हैं जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो. अब वो आप कैसे करेंगे तो समझना. सो फॉर दैट यू कैन गो रैंडमली. आप आपके मॉम डैड की हेल्प ले सकते हैं, राइट, या आपके सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, आपसे छोटे या बड़े जो भी हो. ओके. व्हाट यू हैव टू डू इज एनी बुक जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है या नहीं सॉल्व की है, राइट, और योर होमवर्क क्वेश्चन एनीथिंग. ओके. अगर होमवर्क क्वेश्चन है तो आपको लाइन में ही करना है. अगर ऑलरेडी आपने सॉल्व कर दिया है या नई बुक है, राइट, अगर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया तो ये मेथड फॉलो करें. सपोज दिस इज योर मॉड्यूल, राइट, मॉड्यूल में एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, या दिस इज योर एनसीईआरटी जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. Now for this module or NCERT, what you have to do is आपके पेरेंट्स, आपके जो भी पेरेंट्स है या सिबलिंग्स हैं,
वो क्या करेंगे, ये मॉड्यूल या एनसीईआरटी में से रैंडमली जो भी चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, randomly they will pick few questions, okay, and they will give you this question to solve, okay, they will pick few questions and they will give you these questions to solve. इसके लिए आप एक अलग ही बुक बना लें, पूरा साल आपको इसी मेथड से मेहनत करनी है, राइट, एक अलग बुक बना लें. दिस बुक कैन बी, आप उसको नाम दे सकते हो, दिस इज योर प्रैक्टिस बुक, ओके, इस तरीके से आप नाम दे दें उसको, दिस विल बी योर प्रैक्टिस बुक. जैसे आपको रेगुलर बुक, होमवर्क करेक्शन बुक, ओके, मतलब एग्जाम करेक्शन बुक, फॉर्मूला बुक, वैसे अलग अलग बुक बनाइए, दैट दिस इज योर पीबी, प्रैक्टिस बुक, ओके. सो ये रैंडम है, ये मैं चेक नहीं करूंगा, ये आपके लिए है जो भी अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहे. अब मान लीजिए आज का मैं टाइम दे रहा हूँ, राइट, तो मेरा टाइम फिक्स है, मैं 30 मिनट का टाइम एवरीडे दे रहा हूँ, ओके, एवरीडे माई टाइम इज फिक्स, आई एम गिविंग 30 मिनट एवरी डे, 30 मिनट, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, राइट. नाउ सपोज आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उतने मुझे यहाँ पे लिखने हैं. सपोज टुडे आई एम एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, राइट, ओ सॉरी ज्यादा हो गया, नॉट 10 क्वेश्चंस, सपोज आई एम एबल टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस इन दिस 30 मिनट्स, ओके. जितना भी मुझे मेरे कलीग्स ने, मतलब मेरे सिबलिंग्स ने, मॉम डैड ने, मेरे पेरेंट्स ने जो भी क्वेश्चंस मुझे निकाल के दिए, तो या जो भी मेरा मैथ्स का होमवर्क है, तो 30 मिनट्स में मेरे 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ओके. अब मुझे एवरीडे ट्राई करना है कि मेरी स्पीड इंक्रीज हो, ठीक है. बेटर कि आप इसे होमवर्क से अलग ही रखें ताकि आपकी मिनी टेस्ट होती जाएंगी एवरीडे, ओके, ताकि आपको टेस्ट में स्पीड इंक्रीज करनी है. अब आज अगर 30 मिनट में 5 क्वेश्चन किए हैं, तो कल आपको ट्राई करना है नेक्स्ट डे कि वो 5 से ज्यादा हो, राइट. बट सिंस इट इज ओनली वन डे में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो आपका 5 का 5 ही रहेगा, ओके. आफ्टर 2 डेज, हाँ, आप एक क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, आई कैन एग्री कि 30 मिनट्स में आपकी स्पीड 5 से 6 क्वेश्चन पे पड़ गई. अगेन वो 6 क्वेश्चन वाली स्पीड आपको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, राइट. हियर यू हैव टू ट्राई कि वो 5 से इंक्रीज हो, हियर यू हैव टू ट्राई कि वो 6 से इंक्रीज हो, हियर यू हैव टू ट्राई 6 से इंक्रीज हो, एंड डेफिनेटली आफ्टर 3 days वो 6 से इंक्रीज हो जाएगी और 7 हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू विल फॉलो दिस चार्ट टिल 21 days, पहले बस आप 21 days के लिए स्टार्ट करो, राइट. सो डेफिनेटली इन 21 days आपका ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा स्पीड, ओके. सो ये चार्ट मैंने लास्ट टाइम, am I audible, students? Can you hear me? I think we got some network problem over here. Okay. And now can you see the screen as well? Okay. Now see over here. हाँ. So डेफिनेटली इस मेथड से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, बट आपको देना पड़ेगा, राइट. हाँ, 21 days to 63 days, ओके. तो इस तरीके से आपको करना है. सो एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो जिसको भी स्पीड में इश्यू आ रहा है, प्लीज फॉलो दिस मेथड, राइट, प्लीज फॉलो दिस मेथड, डेफिनेटली यू विल एबल टू सी योर इम्प्रूवमेंट, राइट. सो इन 21 days हमारा नेक्स्ट चैप्टर की एग्जाम होगी, तो आपको लगेगा. So shall we start our test discussion session now? Please give me some response. Okay. Okay. So type your, हाँ, just ये method को follow करो, okay. फिर जिसका improvement आए after 21 days just inform me, मुझे बताओ कि कैसा रहा. Okay. So
Now type your screen. I will share once again. Wait. Type your doubts of test in chat box quickly. Type your doubt in chat box quickly. Right, so that we can see them. Okay, 13 and 14. Okay. Okay. So 10, 11, 11, 12, 14. Okay, so let me write your doubts first. 10, 11, 12, 14. Okay, next. Wait, 10, 11, 12, 14. 11, 12, 14. Okay. 13, 13 as well. Okay. Then 1, 6. Okay. 13, 1, 6. Okay. 1, 12, 14. Okay, वो आपका हो गया ऑलरेडी. सो लेट अस स्टार्ट. इसको देखते हैं, फिर इसके अलावा जो भी होंगे आप ऐड कर देना. ओके, सो लेट मी सी योर क्वेश्चंस. गिव मी 1 minute. Now see your students. So question number 1. Okay, let us see this. Okay, so now see, if I see your question number 1, if AD is not equal to BC, they have given that AD is not equal to BC, then the pair of linear equation AX plus BY is equal to P, and CX, let me write here only, CX plus DY equal to Q will be. तो क्या होगा वहां पे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होंगे? तो इन सारे सॉल्यूशन के लिए यू ऑल नो दैट यू हैव टू चेक रेशियोज. ओके, so if I take ratios over here, if you see ratios over here, so here A by C, और मुझे ये चेक करना है, आई हैव टू चेक दिस इज A by C, B by D, P by Q. सो आपको जो दिया है AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो वहां से अगर मुझे रेशियो देखना हो तो A by C इज नॉट इक्वल टू B by D. सो हु विल टेल मी अगर ये रेशियो आपके सेम नहीं है? ओके, फ्रॉम हियर आई गॉट दैट A by C इज नॉट इक्वल टू B by D. सो आपके x और y कोएफिशिएंट के रेशियोस अगर सेम नहीं है, A by C इज नॉट इक्वल टू B by D, तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक. दैट्स इट, फिनिश. ओके, तो बस हल्का सा ट्विस्ट दिया गया था, इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन. ओके, और अगर ये रेशियो सेम है तो नाउ इफ अगर यही क्वेश्चन में आपको दिया होता है AD इक्वल टू BC, तो आंसर क्या आता? इफ AD इक्वल टू BC, कौन सा सॉल्यूशन? बोलो बोलो. A by C इक्वल टू B by D, और P by Q के लिए आपको कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, राइट?
So if here this means A by C equal to B by D, now we are having two options. If it is equal to P by Q, then infinitely many solutions. Okay, then infinitely many solutions. And if it is not equal to P by Q, then no solution. Okay, so ये हमारा question 1 हो गया. After question 1, we are having doubt in question 6. Question 1 सबको clear? Shall we move to question 6 now? Okay. Please give me some response. Shall we move to question 6 now? Okay. Now see. So in question 6, they are asking if a pair of linear equation is consistent. Pair of linear equation is consistent. So who will tell me its meaning? Pair of linear equation is consistent means वो consistent है तो क्या होगा? Pair of linear equation is consistent. What is its meaning? Very good. It has solutions. और वो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन मीन्स कौन से सॉल्यूशंस होंगे? आइदर यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी. थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा. ओके, क्वेश्चन में बस कंसिस्टेंट दिया गया है. देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन विल हैव पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. बोलो. यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइंस कैसी होती है? लाइंस का ग्राफ कैसा होगा? और इनफाइनाइटली मैनी के लिए कैसा होगा? इजी क्वेश्चन है सब. आपने थियरी और फॉर्मूला बुक अच्छे से लिखी है तो वहीं से आपके दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे. Isn't it? पैरेलल नहीं होगा ना, समझो. यूनिक के लिए आपके लाइन का ग्राफ ऐसे होता है, कोइंसिडेंट. ओके. और यूनिक के लिए आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है. सॉरी, यूनिक के लिए आपका ग्राफ ऐसा होता है, दोनों लाइन आपके ऐसे होंगी जो इंटरसेक्ट करेंगी. इनफाइनाइटली मैनी के लिए वो आपकी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे ही ओवरलैप करेंगी, समझना. ओके. सो कुछ इस तरीके से होगा. अभी समझो कि दोनों ओवरलैप कर रही हैं. एंड पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा? फॉर पैरेलल दे आर हैविंग नो सॉल्यूशन, राइट? इफ दे आर पैरेलल मींस they are having no solution. Is it clear? So option 1 is parallel, वो नहीं आएगा. Intersecting and coincident, so both 2 and 3. So your option will be D, which consists of both 2 and 3. Is it clear? तो सबको इसमें क्लियर हो गया? अनन्या, यू गॉट योर पॉइंट? पता चल गया? Okay. So after question 6, now you are having doubt in question 10.
So in question 20, the solution of the straight line ax plus by equal to c and y axis. चलो y axis का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर y axis का इक्वेशन आपको पता है तो फिर हम उन दोनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, isn't it? So what will be equation of yx? Type in chat box quickly. नहीं, y axis का इक्वेशन mx plus c नहीं होगा. हाँ, yes, very good अनन्या. So see, if you are having this, right, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. Suppose ये मेरी एक्सिस है, right? This is my x dash axis. This is our origin. This is my y dash axis. Okay. Now on this x dash axis, अब ये x एक्सिस है, समझना. तो x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर x एक्सिस के सारे पॉइंट मुझे लिखने हैं तो 1 0 2 0 -1 0, तो सारे पॉइंट्स में कॉमन क्या है? उसका y कोऑर्डिनेट 0. दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0. तो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? इन द सेम वे y एक्सिस पे आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे 0 1 0 2 0 -1 0 -2, इन सबका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. तो y एक्सिस पे सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0. सो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0. ऑलवेज याद रखना, ये शायद दिखाया था ना आपको पहले क्लास में. सो ये आपका x इक्वल टू 0 है. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? कौन सी मेथड इजी रहेगी? ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एक ही मेथड बहुत इजी रहेगी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, isn't it? x इक्वल टू 0 डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we can substitute x equal to 0 directly in this equation. So it will become a into 0 plus by equal to c. Therefore, b into y equal to c implies y is equal to c by b. Implies y is equal to c by b. Is it clear? Okay. So what will be your point of intersection? X equal to 0 and y equal to c by b. So point of intersection will be 0 comma c by b. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 0 कॉमा सी बाई बी. तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है 0 कॉमा सी बाई बी वाला? ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, आप 7 8 क्या बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन 7 8 में भी डाउट है? ओके, 7 8 भी देख लेते हैं. ओके, 7 8 में भी डाउट है. ओके, सो विल सी 7 8 एज वेल, क्योंकि आपने जो मुझे लिस्ट लिखा है तो उसमें 7 8 नहीं था. सो लेट अस इंक्लूड दैट. और 6 क्वेश्चन देख लिया ना हमने. ओके, सो लेट अस इंक्लूड 7 and 8 एज वेल. सो 1 हमने देख लिया, 6 हमने देख लिया, 10 हमने देख लिया. अब 7 8 देख के आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ब्लैंक लाइन्स. तो वो इसी पे बेस पे है. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ब्लैंक लाइंस. और आपको ऑप्शन दिए गए पैरेलल, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर के नन ऑफ दिस. चलो, अब आपको पता ही है x इक्वल टू 0 किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 0 किसका ग्राफ है. तो ये ग्राफ क्या मिलेगा बोलो? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज ग्राफ ऑफ y एक्सिस. ओके, y इक्वल टू 0 इज ग्राफ ऑफ x एक्सिस. अभी दिखाया ना यहाँ पे, सी ओवर हियर. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. सो बोथ आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग. कि क्या ऑप्शन आएगा? कि नन ऑफ दिस. ये क्या है दोनों लाइन एक दूसरे को? बोलो, टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. परपेंडिकुलर, राइट? सो दे रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस. ओके,
चलो 7 के बाद आपने 8 भी बोला था ना. ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. So in this question they are asking 3x plus y equal to 1. 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1. 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1. For what values of k will the following system of linear equation have no solution? So आपको k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दिस सिस्टम्स आर हैविंग नो सॉल्यूशन. चलो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? Who will tell me this condition? अभी ऊपर ही देख के गए हम, right? a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to or is not equal to c1 by c2. Okay, तो here आइदर आपके दोनों में सी लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, आइदर राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, कोई भी एक तरफ होने चाहिए. ओके, सो हियर 3 by 2k minus 1 should be equal to 1 by k minus 1 should not be equal to 1 by 2k plus 1, isn't it? Is it right for no solution? Please give me some response. Is it right? So let us simplify this. So therefore 3 times k minus 1 is equal to 1 times 2k minus 1. So therefore 3 times k, screen is blur, you are not able to see the screen. Disha is telling that screen is blur. Earlier Mohit was telling. Please give me some response. Little bit blur. Okay, so maybe network issues. Let me see if I can do something. It is fluctuating for a very little time. Yes, so is internet connection. Okay, it's all because of net connection only. If you can read, then it is good. Or I can use the, I can increase thickness of this marker or thickness of this pen pointer. Okay. 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 So let me try to increase this thickness as well. Wait. Now see over here. So 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. Is it readable now? Can you read this? Okay. So 3k minus 2k will be equal to 3 minus 1. 3 minus 1 is 2. 3k minus 2k is k. So k equal to 2. k की एक वैल्यू आपको मिलेगी 2. अभी हमें वो नहीं पता कि k क्या नहीं होगा, बट एटलीस्ट इतना पता है कि k क्या होगा. So for what values of k the following system of linear equation have no solution? 2 minus 2 minus 1, none of this. So answer will be 2. Isn't it? Is it clear now? Please give me some response. Okay, shall we move to next question? Okay. And for k equal to 2, you have to check as well कि ये क्या आपकी condition follow हो रही है कि नहीं. You have to check. So if you are going to take k equal to 2, your first ratio will become 3 by 2 to the 4 minus 1, 3. No, sorry, 2 to the 4 minus 1, 3 only. 1 upon 2 minus 1, and here 1 upon 2 to the 4 plus 1. So definitely this is not right. ये condition भी आपकी satisfy हो रही है, ये भी satisfy हो रही है. Isn't it? 3 by 3 1 and 1 upon 2 minus 1 is also 1.
ओके तो एक ही चीज से आपका दोनों काम हो गए. इज इट क्लियर? चलो, now let us see your next doubt. So we have finished 1, 6, 7, 8, 10. Now 11 to 14 continuous. 11, 12, 13, 14. You require more thickness, na? Wait. Okay. So if you see question number 11, okay, wait, I opened the wrong PDF. Give me 1 minute. Okay. So in question number 11, 4 men and 6 women can finish a piece of work in 5 days. Okay. So our first condition is 4 men and 6 women can finish a piece of work in 5 days, while 3 men and 4 women can finish the same work in 7 days. The time taken by 1 man alone and 1 woman alone to finish the work are blank and blank days respectively. Okay. So ये उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे हमने क्लास में किए थे. Okay. So suppose if 1 man is doing this work separately, so 1 man can finish this work in X days. 1 woman can finish the work in Y days. So from here, if I tell or if I want to find that in 1 day, man can complete how much portion of work? In 1 day, man can complete how much portion of work? 1 by x. Okay. So man can complete 1 by x part of work. In the same way, in 1 day, woman can complete. So how much part of work? Bolo? If 1 woman can complete whole work in 7 days, in 1 day woman can complete 1 by y part of work. Okay. So now the first case they have given us for 5 days. Okay. So let us check for 5 days. So for case 1, okay. So 4 men can do 4 by 6 part of work in 1 day, and in 5 days they can do. So 1 by 6 of work is the amount of work completed by 1 man in 1 day. So multiply by 4, this is the amount of work completed by 4 men in 1 day. Multiply by 5, this is the amount of work completed by 4 men in 5 days. Is it clear? Please give me some response. Isn't it? Plus, in the same way, in a 1 day, 1 woman can complete 1 by y part of work. So 6 women can complete 6 into 1 by y part of work. And in 5 days, they can complete 5 into 6 into 1 by 5, 1 by y part of work. And according to first statement, in this time or in 5 days, 4 men and 6 women can complete 1 whole work. तो पूरा आपका वर्क खत्म हो जा रहा है. केस 1 क्लियर हुआ? इसी तरीके से हमने क्लास में देखा था, isn't it? Please give me some response. याद आ रहा है? Everyone, right? What about others? I require response from each and everyone.
और I'll assume that आपको clear है and I'll move forward. Okay, yes. If anyone is having any doubt, you are open to ask. Feel free to ask. Okay. So here our first equation can be reduced to 5 4s are 20 by x, 6 5s are 30 by y equal to 1. This will be our first equation. Okay, now let us find for case 2. Now, so for case 2, you can see over here, 3 men and 4 women can complete whole work in 7 days. So one woman can be one complete 1 by x part of work in 1 day. So 3 men can do in 3 days, and 3 by x part of work, and in 7 days they can complete 7 into 3 into 1 by x part of work. Similarly, one woman can complete 1 by y part of work in 1 day. So 4 women can complete multiply by 4 in 1 day, and in 7 days they can complete multiply by 7, and together they are completing one whole work. So here 7 3s are 21x or 21 by x. 7 4s are 28 by y equal to 1. So whenever you are having x and y or 1 upon x and 1 upon y, तो उसको आप क्या एज्यूम कर लेते हो स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 by x और 1 by y को क्या एज्यूम करेंगे? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. राइट, अभी ये थिकनेस सबको क्लियर है ना? अभी अगर स्क्रीन ब्लर भी होगी तो शायद ये थिकनेस वाला तो दिख ही जाएगा. यस, u and v, राइट. So here let us consider 1 by x is equal to u, 1 by y is equal to v. So therefore 20 into 1 by x u plus 30 into 1 by y v equal to 1, and 21 u plus 28 v equal to 1. So which method you can use over here? बोलो कौन सी मेथड इजी रहेगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, elimination, method of substitution. You can use any method. Or since it is MCQ based question, you can use trial and error as well. बोलो, बड़ा क्वेश्चन है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? हु विल टेल मी स्टेप 1 फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्या यहीं से डायरेक्ट हम प्रोसीड कर सकते हैं या कुछ करना पड़ेगा? व्हाट इज स्टेप 1 स्टूडेंट्स? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. यस, कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c equal to 0. So for that it should be 20u plus 30v minus 1 equal to 0, and 21u minus 28v minus 1 equal to 0. Okay, so let us use cross multiplication method. Step 2, you have to follow pattern. What is pattern? u के नीचे हम दो जगह छोड़ देंगे, v कांस्टेंट टर्म. u के लिए आप इसको हाइड कर दो, राइट. और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. I have got one technique for this in this software. So u के लिए अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा, राइट. So what I can observe here, 30 minus 28 minus 1 minus 1. Okay, so 30 minus 28 minus 1 minus 1. फिर मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कांस्टेंट टर्म को हाइड करो, v को मत देखो. ओके, सो इफ आई हाइड कांस्टेंट टर्म नाउ, क्योंकि 1 के कोएफिशिएंट्स लिखने, 1 के नीचे लिखना है. Oh, so if I hide these constant terms now, okay, so they will become 20, 30, 21 minus 28. और स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था? 30 minus 1 minus 28 minus 1. और आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट और लास्ट आपका सेम होना चाहिए. ओके, अगर फर्स्ट और लास्ट आपका सेम नहीं तो हाँ. Okay, my mistake, it is plus 28 only. Okay, thank you Pragna, Yash and Pradnya. चलो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. So now we will do this cross multiplication everywhere as per its name suggests. Okay, so what will be step 3 over here? Let us try to find out.
So therefore you divide by minus 30 minus minus 28, तो आपका plus 28 हो जाएगा, isn't it? चलो is equal to v divide by minus 21 minus minus plus 20 equal to 1 divided by 20 into 28 minus 21 into 30. So therefore you divide by minus 30 plus 28, that is minus 2. We divide by minus 1. 1 divided by 28 twos are 560. And 21 threes are 610, isn't it? So 28 twos are 560 and 21 threes are 610. So 560 minus 610, definitely it is 50. So minus 50. Okay. So here if you will compare u by minus 2 with 1 by minus 50, so u आपका 2 by 50 हो जाएगा, तो u will be your 1 by 25. In the same way, v will be your 1 by 50. But we all know that u equal to 1 by x and v equal to 1 by y. So if we substitute again values of u and v, those are 1 by x and 1 by y. So x is 25 and y is 50. So man can finish a piece of work in 25 days. On the other hand, women can finish a piece of work in 50 days. कोई गलती हुई क्या? हाँ, my mistake, again my mistake. Please students give me pardon. Wait. It is 630. Okay. तो ये 70 मिलेगा. तो ये आपको 2 by 70 मिलेगा, तो वो 35 होगा. और ये 70 मिलेगा. See, a little mistake. Okay, और फाइनल आंसर रॉन्ग. व्हाट वाज दैट मिस्टेक? ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी. ओके, कि 21 into 3, तो ये 1 into 3 करना भूल गया, उसको 1 लिख दिया था. So yes, this is how your mistakes can happen in exam. Okay. So is it clear? So your focus should be clear. Okay. Please give me some response here. X is equal to 35 and y equal to 70. Is it clear? Shall I repeat this question? Okay. हाँ, डेफिनेटली यही सारी चीजें तो आपको संभालनी है. इन्हें स्मॉल मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटते हैं. डेफिनेटली आई एग्री. ओके, और ये तो शुरुआत है. अभी 11 12 में आप जाओगे तो अभी से प्रैक्टिस कर लो. 11 12 जेई में तो इससे ज्यादा होगा, राइट? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, और मार्क्स कटेंगे नहीं, उसमें तो नेगेटिव में जाएंगे. इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाएगा. मतलब एक तो उसके मार्क्स तो जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन के मार्क्स भी जाएंगे. So shall I repeat this question? Please give me some response. I'm repeating this question. Listen. 4 men and 6 women can complete in 5 days. 3 men and 4 women can complete in 7 days. Right. 1 man require X days. Suppose 1 man require X days to complete the work, and 1 woman can require Y days to complete the work. So in 1 day, 1 man can complete 1 by X part of work. Let me explain you with highlighter only. So give me 1 second. See. So if I'm assuming that 1 man can finish a work in X days and 1 woman can finish a work in Y days. So in 1 day, how much portion or what portion of work a man can complete? A man can complete 1 by X part of work. And the same way in 1 day,
one woman can complete 1 by y part of work. So according to case 1, 4 men can complete 4 into 1 by x part of work in 1 day, and in 5 days I have to find, so I have to multiply with 5. In the same way, in 1 day, 1 woman can complete 1 by y part of work, so 6 women can complete 1 by y into 6, and in 5 days they can complete 1 by y into 6 into 5. Okay, and they are able to complete whole total work, so is equal to 1. So after simplifying, this first equation can be reduced to 5 4s are 20x. This is your 5 4s are 20 by x, and 6 5s are 30 by y. Okay, 6 5s are 30 by y. In the same way, if we see for case 2, so 3 men can finish 1 by x into 3 portion of work in 1 day, and in 7 days they can finish multiply by 7. 4 women can complete 4 into 1 by y part of work in 1 day, and together in 7 days they can complete into 7th part of work, and together they are able to complete whole work. So this will be equal to your 21 by x plus 28 by y is equal to 1. 21 by x plus 28 by y equal to 1. Right. So here, if I assume let 1 by x is equal to u, right, and 1 by y is equal to v, so let 1 by x equal to u, 1 by y equal to v. So here 20u plus 30v equal to 1, 21u plus 28v equal to 1. Right, both the equations can be converted into u into v. So after solving them with the help of cross multiplication method, so in step 1 we have converted them into standard form, right? And after converting them into standard form, we try to write in this form, okay? And after writing in this form, after finding cross multiplication, we got values of u and v as 1 by 35 and 1 by 70. Exactly, we got 1 by 25 and 1 by 50 with this mistake. And I have highlighted this mistake also. So whenever you are making your fair book, regular book, so every time just highlight your mistakes, right? I am telling you this from beginning only, right? And this, I believe strongly that mistakes are good, right? We are human beings, we are made for mistakes. हमें mistakes हमसे होंगी ही. So we should make mistakes and we should learn from them. Okay. So mistakes are good. Surf Excel दाग अच्छे हैं. Mistakes are good. So make mistakes and learn from them. Okay. Mistakes are good. Make mistakes and learn from them. So anywhere, whenever we are making mistakes, just highlight them. Okay, like how I have highlighted now. So when you will read or when you will revise, so you can focus or concentrate on this highlighted portion, that yes, here you have done the mistake. So in next time you can take care. Okay, so after comparing them with 1 by x and 1 by y, here you will get x is equal to 35 and y equal to 70. Is it clear now? Shall we move to next question? राइट, तो इसको मैंने रिवाइज कर दिया ऑलरेडी, राइट? ये पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक बार. सो लेट अस कम टू योर डाउट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ लेट अस गो टू 12, 13 एंड 14. अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा स्टूडेंट्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. चलो क्वेश्चन 12. So Amar has a total of rupees 130 in 3 denominations of coin. So by Aman के पास, Aman is having, or it is Amar, sorry. So Amar has a total of rupees 130 in 3 denomination of coins. Those coins are rupee 1, rupee 2 and rupee 5. So total 1 rupee coin plus 2 rupee coin, 5 rupee coin totally. If he has 4 coins in total,
total coins are 40, right? If he has 40 coins in total, then the maximum number of rupee 5 coins that he can have will be. So yes, this is tricky question. Maximum number of 5 rupee coins, ये हमें फाइंड करना है. Are you getting my point? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन थे कि वो कैसे थे, दो दो कॉइन के लिए थे. ओके कि अगर सिर्फ आपके पास 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन का है तो कैसा होगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन थे. चलो अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास ये समझना, आप दिस इज ट्रिकी. तो ये आपका एग्जैक्टली 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इजंट इट? समझो. सो सपोज अमन के पास 1 रुपये के एक्स कॉइन्स हैं, 2 रुपये के वाई कॉइन्स हैं, 5 रुपये के जेड कॉइन्स हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमें ये बोला गया कि टोटल आपके पास 40 कॉइन्स हैं. टोटल कॉइन्स आर 40. सो x plus y plus z is equal to 40. Is it clear? Okay. Now total number of rupee. अच्छा, meaning of 3 denominations. 3 denominations मतलब कि क्या बोला जाता है उससे. 3 denomination means कि कौन कौन से कॉइन है उसके पास, राइट? मतलब जब अब मान लो कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जब रुपीज सर्कुलेट कर रही है, राइट? जब आरबीआई सारे रुपीज बनाती है और पूरे मार्केट में सर्कुलेट करती है, तो वो अलग अलग कॉइन्स बनाती है, राइट? नोट्स बनाती है. तो वो कॉइन्स और नोट्स की जो वैल्यू होती है, सपोज ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है, ये 10 रुपये की नोट है, ये 50 रुपये की नोट है. सो दिस ऑल आर कॉल्ड इज डिनोमिनेशंस. ओके, तो ये आपके डिनोमिनेशंस का मीनिंग हुआ. सो डिनोमिनेशंस मींस दिस. ओके, डिनोमिनेशंस. सो इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके 3 डिनोमिनेशन है. डिनोमिनेशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, वो कॉइन कौन कौन से, मतलब उनकी कॉइन की वैल्यू क्या है. ओके, कौन कौन से अलग अलग डिनोमिनेशन है. एंड टोटल रुपीज आर 130. तो टोटल रुपीज 130 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड इक्वल टू 130. ये आपको दिया गया है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, एक चीज ऑलवेज याद रखना. ओके, वेट हियर, आई एम हैविंग battery issues, and please give me 1 minute. I have to put this in charging. Only 1 minute. Okay, now see over here. Okay. Shreya, what is this? Shreya D. ओके, अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये समझना स्टूडेंट्स. लीनियर इक्वेशन में आपके जितने वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको उतने इक्वेशंस चाहिए, राइट? अभी जो मैंने आपको बोला वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज याद रखना. इन लीनियर इक्वेशन, राइट, आपके पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, तब आप उसे सॉल्व कर सकते हो. सो टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, you should have as many number of equations as number of variables. जितने आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे इतने आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए. दैट मीन्स अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 2 इक्वेशन होने चाहिए. अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 3 इक्वेशंस होने चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इज इट क्लियर? 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 3.
बट इक्वेशन कितनी है? 2। अगर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो डेफिनेटली हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? वी कैन नॉट सॉल्व देम। तो अब यहाँ पे अगर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंस वी आर हैविंग हियर 3 वेरिएबल्स x y z, we should require 3 equations to solve them. But since we are not having 3 equations, we cannot solve them directly. So we can use hit and run method और trial and error method. Okay, ये एक ही मेथड के दो नाम है कि जिसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ऑप्शंस आप अंदर रख के देखो, सब्स्टिट्यूट करके देखो, और उसमें किसमें आपको वैल्यू प्रॉपर मिल रही है वो देखना पड़ेगा. So if you see this options of this question, okay, question number 12, options of Z are, let me write options given, then we'll compare with this equations. So in the question they have given us options that maximum value of Z क्या होगी. If you compare or if you observe these options are (24, 22, 23, 21). Today you are having class from school. 24, 22, 23, 21. So we'll put these values one by one और हम देखेंगे कि उन सभी वैल्यूज पे हमें x और y की वैल्यू क्या मिल रही है. बट वो वैल्यू पे x की y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे. सो हियर वी आर हैविंग दिस टू इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो कि आपका x कॉमन है, राइट? यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर दैट x इज कॉमन ओवर हियर. तो किसी भी एक इक्वेशन में से अगर मैं दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो x निकल जाएगा. सो पहले x को एलिमिनेट कर देते हैं. So suppose this is your equation 1, this is your equation 2, right? If I am writing equation 2 minus equation 1, so equation 2 minus equation 1 will give me someone direct कर रहा हूँ. So x minus x 0, 2y minus y will be y plus 5z minus z will be 4z equal to 130 minus 40, 90. So y plus 4z is equal to 90. Is it clear? So if y plus 4z equal to 90, let us try to put all the values of z given in the question and let us try to find y. So y plus 4z equal to 90 implies y equal to 90 minus 4z. So for z equal to 24, what will be your y? 90 minus 4 into 24, right? And 90 minus 4 into 24 करोगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा -6 which is less than 0. So it is not possible क्योंकि y तो number of coins है, number of coins तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा. चलो, then for another value for 22, so for z equal to 22, y is equal to 90 minus 4 into 22. So y can be equal to 2, which is greater than 0. It is possible, right? Because 22 4 is 88. थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ. z equal to 23, y is equal to 90 minus 4 into 23. तो y आपको क्या मिल जाएगा? 4 3 is 12, बढ़ जाएगा, अगेन नेगेटिव ही मिलेगा. So -2 which is less than 0, not possible. अब आपको दिया है z equal to 21, so y will be equal to 90 minus 4 into 21. So y will be equal to 4 1 4 4 2 8, 84. तो यहाँ पे y मिल जाएगा 6. आपको क्या पूछा गया है? तो दो केस में z की वैल्यू पॉसिबल है. तो नाउ हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट दो वैल्यू z के केस में हमें y मिल रहा है 2 and 6 if z is 22 and if z is 21. तो हमें y मिल रहा है पॉजिटिव. तो ये दोनों पॉसिबल है. बट व्हाट दे आर आस्किंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगी? बोलो इन दोनों में से व्हाट विल बी आवर आंसर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 21 और 22 में से z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? गिव मी रिस्पांस क्विकली ना. अरे 21 और 22 में से z की मैक्सिमम वैल्यू 22 है ना. ओके, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू. सो लेट अस सी 13 and 14 quickly. Okay, the last two questions. Question number 13. 4 years hence a father's age will be 2 years less than 3 times the age of his son. Also 6 years back his age was 2 years more than 5 times the age of his son. Find how many years from now will their combined age will be 100 years. Okay.
सो फादर और सन की बात की गई है. सो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो आप ऐसा टेबल बना ही लो, फादर, सन, present, future, and past. Okay, so we'll do time travel over here. So suppose father की present age है x years, son की present age है y years. Okay, 4 years hence. So future is after 4 years. So father's age will be x plus 4, son's age will be y plus 4. Right, and 4 years hence the father's age will be 2 years less than 3 times the age of his son. So 4 years hence the father's age, 4 years hence father's age is x plus 4. It will be 2 years less than, it will be 2 years less than 3 times age of his son, 3 times age of his son. Is it clear? So from here we can get first equation. Also 6 years back, चलो time travel करके पीछे जाएंगे. 6 years back, x minus 6. His age was 2 years more than 5 times. तो इसकी सन की एज भी हो जाएगी y minus 6. So his age was 2 years more than, his age was 2 years more than 5 times age of his son, 5 times age of his son. Okay, तो ये दो कंडीशन दी गई. आफ्टर हाउ मेनी years from now will their combined age will be 100 years. सो पहले अभी की कंबाइन एज फाइंड कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद वो 100 इयर्स होगी. ठीक है, तो पहले इवन प्रेजेंट की तो एक्स एंड वाई फाइंड कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि कब फ्यूचर में आगे जाना है. सो सी ओवर हियर, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा. देयरफॉर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्विकली. सो दिस इज x प्लस 3y, इधर आएगा माइनस 3y. 4 3s are 12 minus 2 on RHS it will be 10, 10 minus 4 will be 6. So this will be my equation 1. चलो here x minus 5y will be equal to 5 6 30 minus 30 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 2 8 minus 30 plus 8 minus 22 हो जाएगा. एंड here we can see that x दोनों में कॉमन है तो एलिमिनेशन मेथड इजी हो जाएगी. तो ये माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसल, माइनस 3y प्लस 5y 2y, 22 प्लस 6 28, तो y मुझे मिल जाएगा 14. तो चलो भाई, सन की प्रेजेंट एज है 14 इयर्स, सन की प्रेजेंट एज है 14 इयर्स. चलो व्हाट अबाउट फादर्स एज, कोई भी एक इक्वेशन में रखो. पहला इक्वेशन आसान लग रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3 इंटू 14 इक्वल टू 6. तो x माइनस 14 3 42 इक्वल टू 6, so x इक्वल टू 48. सो फादर की प्रेजेंट एज है 48, सन की प्रेजेंट एज है 6 और 14. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी दिस रिस्पॉन्स. पहले ये क्लियर हो गया, 48 और 14 आ गया पहले. ओके, सो अब यहाँ पे एज्यूम करो कि लेट अस एज्यूम दैट x और y दो वेरिएबल ऑलरेडी ले लिए, तीसरा वेरिएबल ले लो. आफ्टर z years their combined age will be 100 years. ओके, अब समझना, अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आएगा. सो आफ्टर z years, चलो अभी प्रेजेंट एज, वापस टाइम ट्रैवल करेंगे स्टूडेंट, समझना. सो ही इज फादर, ही इज सन, नाउ प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज हमें पता है. फादर की प्रेजेंट एज 48, सन की प्रेजेंट एज 14. चलो फ्यूचर में जाना है. आफ्टर z years फादर की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर z years फादर की एज कितनी हो जाएगी? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. आफ्टर z years फादर की एज कितनी हो जाएगी? 48 प्लस z. सन की एज कितनी हो जाएगी? 14 plus z. Okay, and their combined age will be 100 years. So 48 plus z plus 14 plus z equal to 100 years. So 48 plus 14 वो आपका हो जाएगा 62. Z plus z 2z, 100 minus 62 will be 38. So x will be equal to 19 years. Is it clear? Okay, x नहीं, sorry, z. So z will be equal to 19 years. So after 19 years, so 19 will be your answer. Right? मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, और डेफिनेटली टाइम कम पड़ेगा ही. ऑनलाइन एग्जाम है और ऑनलाइन एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे तो टाइम कम पड़ेगा ही, और वैलिड है ये. आपको एग्जैक्टली सारी आपकी ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन है
आपके फ्यूचर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड वो चीज़ हम देखेंगे आपके लिए। ऑफलाइन एग्जाम का भी हम प्लान कर रहे हैं, राइट। कल विष्णु सर के साथ पूरा डिस्कशन हो रहा था, तो हम आपके ऑफलाइन एग्जाम भी लेंगे और उसको ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे उनका पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। सो सून यू विल बी हैविंग दिस। नहीं अभिषेक 38 ही आएगा, 34 नहीं आएगा। जस्ट आप एक बार वापस घर से ट्राई करना, 38 आएगा। ओके चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए वो दिखा नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से एक बार देख लेना, मैं फटाफट खत्म कर रहा हूँ। द एज ऑफ सीता इज 8 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। तो हमारे पास दो लोग है भाई, सीता एंड सोनू। सपोज सोनू की एज है x, तो सीता की जो एज है वो है 8 years मोर देन twice the age of Sonu. It is 2x. If after n years the age of Sita becomes twice the age of Sonu, चलो after n years, अब दोनों में n years add कर रहा हूँ, this is their present age. Okay, चलो let us do time travel. Let us go to future after n years. Okay, so after n years Sonu's age will become x plus n, and Sita's age will become 2x plus 8 plus n. So after n years, the age of Sita becomes age of Sita, that is 2x plus 8 plus 9 or n will become twice the age of Sonu, will become twice the age of Sonu, twice x plus n. Then n equal to, तब हमें n फाइंड करना है. Okay. Now, अच्छा ये 15 ले लिया, अरे अभी देख लो 15 ले लिया तो 15 देख लो, बाद में 14 देख लेंगे. चलो, so therefore 2x plus 8 plus n equal to 2x plus 2n. तो 2x दोनों जगह से कैंसिल, 2n minus n equal to 8, तो n आपको मिल गया 8. ओके चलो 14 क्वेश्चन अब फटाफट. चलो इन 14th क्वेश्चन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पता है, क्लास 9th में हम पढ़े थे ना. ओके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल के जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे हो, और उसके लिए एक प्रॉपर्टी भी है, ऑपोजिट एंगल्स उसके क्या होते हैं. एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द मेजर ऑफ एंगल ए एंड डी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया और उसमें ए और डी के एंगल्स आपको पूछे गए हैं. ओके सो पहले हम एबीसीडी लिख देते हैं. चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताओ स्टूडेंट्स फटाफट. ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं याद है? ओके क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, नॉट अ बिग डील. सो ए बी सी डी ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है. बी एंगल आपको दिया है 3y माइनस 5, ए एंगल आपको दिया है 4y प्लस 20, सी एंगल आपको दिया है माइनस 4x, डी एंगल आपको दिया है माइनस 7x प्लस 5. ओके यस, सो सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180. तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180. एंगल बी प्लस डी, सो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180. isn't it? माइनस 5 प्लस 5 कैंसल, तो यहाँ आपको इक्वेशन मिलेगा 3y माइनस 7x इक्वल टू 180. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 या 2, जो भी आप नाम दो. ओके और यहाँ आपका हो जाएगा 4y माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस 20, दैट इज 164. को कॉमन निकाल दो तो y माइनस एक्स विल बिकम 40, 4 4 जा 16. ठीक है, अब यहाँ पे है आपका 3y माइनस 7x और वहां पे है आपका y माइनस एक्स. तो चलो मैथड ऑफ एलिमिनेशन इजी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी. 3y माइनस 3x इक्वल टू 120. इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके माइनस प्लस माइनस, थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ मुझे पता है आपके स्कूल से क्लास है. माइनस 7x प्लस 3x 1. ओके कहीं कुछ गलती नहीं है ना, सब सही है ना. ओके सो प्लस now minus 7 plus 3, so it is minus 4x equal to 180 minus 120, 160. oh 180 minus 120 60 only. कहीं कुछ गलती है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है. ओके क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हुई जल्दी जल्दी में. 3y minus 5 minus 7x plus 5, right? Minus 4x and minus and 4y plus 20. Okay, so minus 4x plus 4y plus 20 is 180. 3y minus 5 minus 7x plus 5 equal to 180. So 3y minus 7x 180. I agree. 4y minus 4x is equal to 160. So y minus x is equal to 40. हाँ
तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बाई माइनस 3x 120, वो भी तो राइट है। तो नेगेटिव में आंसर क्यों आ रहा है? माइनस ये कैंसल, वैल्यू विल बी नेगेटिव ओनली। ओके, अच्छा ओके, एक्स और वाई एंगल थोड़ी है, राइट? सो एंगल्स तो अलग है। सो एक्स विल बी 60/4 15 और नेगेटिव में, सो एक्स विल बी और -15। अब x -15 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y आपको मिलेगा y प्लस 15 इक्वल टू 40, तो y विल बी और 25। अब आपको पूछा है एंगल ए और एंगल डी का मेजर। ओके, सो इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन carefully, so your angle A is 4y plus 20, तो वो आपको हो जाएगा 4 into 25 plus 20, 100 plus 20, 120, दिस इज योर एंगल ए। एंड एंगल डी उसके सामने वाला एंगल है -4x, राइट, which is equal to -4 -15 60। okay, is it clear? okay, so thank you everyone, sorry आपका 2 मिनट ज्यादा ले लिया। so now you can end, और 3 मिनट ज्यादा ले लिया, right? so you can attend your school class now। okay, thank you everyone, thank you। so angle A equal to 120, angle D equal to 60। okay, this is your homework, exam correction book। okay, ये सारी चीजें एग्जाम करेक्शन बुक में लिखनी है। okay